darkness and spread the knowledge and wisdom of positivity. It also marks a humble beginning of our today's function. I now respectfully invite our honorable chief guest, along with our respected Sister President, respected Sister President. ज्योति दे भगवन ज्योति दे भगवन ज्योति दे भगवन अपनी भगवन अपनी पावन ज्योति दे भगवन 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 harmony and success. May this sacred offering fill our hearts with humility and gratitude. मन की शुद्धता और भावों की सच्चाई के साथ अब प्रस्तुत है एक शांत और पावन प्रार्थना नृत्य। Counselor for Education, dear parents, distinguished guests, well-wishers,
dedicated staff, and my beloved students. A very good morning to one and all. A very warm and cordial welcome to our dear parents, distinguished guests, well-wishers, dedicated staff, and my beloved students. Your gracious presence fills this occasion with joy, enthusiasm, and a spirit of togetherness. We are deeply grateful for your constant support, encouragement, and active involvement in the life of our school, which nurtures the growth, learning, and holistic development of every child. Section, your presence adds meaning, warmth, and inspiration, making this event truly memorable for all of us. It is with a profound reverence and heartfelt joy that we extend a special welcome to our esteemed chief guest, Sri Hari Om Vaishnav, the respected Block Resource Coordinator of Tejaji Nagar from Education Department. Your gracious presence today adds immense dignity and significance to our celebration, beautifully reflecting the essence of this day's enchanting theme, the spark of love. Sir, your unwavering dedication to the noble mission of education truly embodies the spirit of igniting your young minds with the knowledge, values, compassion, and hope. Just as a single spark has the power to kindle a radiant flame, your sincere efforts and inspiring leadership have illuminated the paths of countless students and educators. Through your guidance, schools continue to flourish as centers of learning where curiosity, discipline, unity, and wisdom grow in harmony. Respected Sir, your devoted service in the field of education continues to awaken the potential within your minds and guide them toward a future rooted in values, integrity, and excellence. On behalf of the entire school family, we extend our heartfelt gratitude to Sri Hari Om Vaishnav for honoring our annual cultural fest with his esteemed presence. We wish you good health, continued success, and abundant blessings in all your noble endeavors. As we embark on this celebration, creativity, and togetherness, I extend my best wishes to all our participants and attendees. May this event inspire us to embrace the values of love, unity, and learning in every aspect of our lives. Let us remember the words of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. With this spirit, let us celebrate the talents, hard work, and enthusiasm of our students and make this annual cultural fest a truly memorable and enriching experience for everyone present. May God bless each one of you with health, happiness, and continued success. Jai Bharat. Now I request our respected Sister President and respected Sister Principal to please honor our chief guest with a shriffle and shawl. Please give a big round of applause. Thank you, sisters. Now I request our respected Sister Principal to please welcome respected Sister Sajiva with a sapling. Thank you, Sister. Now I request our head boy, Kaushal Pandey, to welcome Sister Principal with his sapling. Thank you, Kaushal. Now I request our head girl, Ridhima Panchal, to welcome Sister Jyotis with a bouquet.
Khidma, flowers symbolize love, respect, and gratitude. Through this floral welcome, we convey our sincere appreciation and honor to you. Now we request all the dignitaries to take their respective seats. कदमों की थाप मुस्कान की छाया स्वागत है आपका ये उत्सव विशेष It is my pleasure to invite our talented performers to grace the stage for a vibrant and joyous opening that celebrates the spirit of togetherness and sets the rhythm for today's festivities. Let's give them a big round of applause as they bring energy, color and enthusiasm. Get over here tonight. I'll call you what you like. We'll make it such a night to remember all our lives. You let me call you baby. I really blow your mind. Oh boy, make your mind up. We're running out of time. Out of time. Welcome, everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. To the party come, welcome, welcome. Jump, jump, everybody. Welcome, jump, jump, everybody. Welcome, jump, jump, everybody. Welcome, jump, jump, everybody. चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Let's extend a heartfelt thanks to the wonderful performers for setting such an uplifting and joyous tone for today's celebration. Your energy and talent have truly got this morning moving. Let's give them a big round of applause. To move ahead with the important segment of our today's program, now we move ahead to the important segment where our respected sister principal has been requested to come on the stage for the school annual report that shows the overall growth and the achievements of Sri Hariom Vaishnav Sir, BRC Indoor, Tejaji Nagar, President of the school, Reverend Mother Swajiva, Counselor for Education and Primary in charge, Sri Jyotis, Provincial Councillor Sri Shandi, Reverend Sisters, distinguished guests, dear parents, members of the staff, my beloved students, a very good morning to you all. With profound gratitude to Almighty God, I consider it a great privilege to present the annual report of Carmel Convent Higher Secondary School for the academic year 2024-25 on this joyful occasion
of our annual Cultural Day. Carmel Convent Higher Secondary School was established in 1991 under the management of the Congregation of the Mother of Carmel with a small and humble beginning. The Congregation of the Mother of Carmel is a religious and charitable organization committed to the intellectual, moral, social and spiritual upliftment of society. Founded in 1866 in Kerala by Saint Kuryakos Elias Tavra and Reverend Father Leopold Beccaro OCD, it is the first indigenous religious congregation for women in India. Carmel Convent Higher Secondary School is a private, unaided, recognized minority institution affiliated to the Central Board of Secondary Education CBSE, New Delhi. The institution provides value-based, child-centered education in a disciplined and caring environment, aiming at the holistic development of every student. Guided by our motto, love and service, we strive to form integrated and mature human personalities rooted in faith in God and guided by strong values and clarity of purpose. The academic year 2024-25 stood as a witness to perseverance, dedication, and relentless pursuit of excellence. Our students brought great pride and honor to the institution through their outstanding performance in the CBSE board examination. Ms. Poonam Rathore of class 10 achieved an exceptional 95.8% in the CBSE secondary school examination, while Master Janamjay Patel of class 12 secured an impressive 91.6% in the CBSE senior school certificate examination. Many students have also consistently scored above 90% over the years, reflecting not only individual brilliance but also the sustained academic ethos of the school. Behind every achievement lies the unwavering dedication of our teaching and non-teaching staff. Their commitment, passion, and relentless selfless service from the backbone of the institution. Our teachers continually enrich their professional expertise through workshops, seminars, and training programs, embracing innovation and excellence in education. I place on record my heartfelt appreciation for their teamwork, perseverance, and tireless efforts in shaping young minds and nurturing future leaders. In keeping with our commitment to holistic education, the school encouraged active participation in a wide range of co-curricular activities throughout the academic year. A large number of students enthusiastically participated in competitive examinations. Our students also took part in several programs and competitions organized by the Sahodaya School Complex, Indore, promoting inter-school collaboration and all-round development. Additionally, students actively participated in activities conducted under the Indore Diocese Education Department, fostering value-based learning, leadership, skills, and social awareness. Recognizing the importance of physical fitness and overall well-being, the school laid due emphasis on sports and physical education. Students actively participated in various sporting activities, yoga sessions, meditation practices, and regular physical drills. These activities promoted mental well-being, discipline, teamwork, leadership qualities, and a spirit of sportsmanship. During the current academic year, the school introduced Scout program to foster values of service, self-reliance, and civic personality. A trained Scout coach was appointed to guide and mentor the students, ensuring systematic training and meaningful participation. The school placed strong emphasis on cultural, moral, and value-based education. National festivals, religious celebrations, and important commemorative days were observed with reverence and enthusiasm. Through morning assemblies, cultural programs, and skit based on the values enshrined in the preamble of the Constitution, students were nurtured in values such as justice, liberty, equality, fraternity, respect, responsibility, integrity, and compassion. Continuous efforts were made to strengthen and upgrade the infrastructure and facilities to create a safe, vibrant, and conducive learning environment. The academic year also witnessed the renovation and complete facelift of the school administrative wing, reflecting the institution's commitment to progress, modernity, and student well-being.
Facilities such as computer education, art and craft, music and dance, library resources, science laboratories, and digital learning tools were further enhanced. A significant highlight of the year was the introduction of the Leap Learning Lab by expertise from Norway for students from pre-primary to class 5th. This innovating learning space provides hands-on, activity-based education, strengthening literacy and numeracy skills while fostering critical thinking, problem-solving abilities, and a love for learning. I express my heartfelt gratitude to our management for their visionary leadership, constant guidance, and generous support. I also sincerely thank our parents for their trust, cooperation, and active partnership in the holistic development of their children. Their encouragement plays a vital role in nurturing compassionate individuals who grow into socially responsible citizens and live the ideals reflected in the school motto in harmony with the core principles of CBSE. As we look ahead, the school envisions a future of continued growth and excellence, striving to elevate academic standards, strengthen value-based education, integrate advanced technology, and enhance support services for every student. Guided by the Carmelite charism of love and service, we remain committed to shaping respectful, dedicated, and enthusiastic learners, young minds inspired not only to excel academically, but also to serve and lead with integrity. I offer my heartfelt gratitude to Almighty God for His abundant blessings and guidance throughout the year. I seek the loving protection and constant assurance of Mother of Carmel and extend my sincere thanks to our chief guest, management, parents, teachers, and students for their unwavering support and dedication in making this academic year truly meaningful and successful. With confidence, hope, and shared commitment to our vision, we move forward together, continuing our mission of nurturing minds, shaping character, and serving with love. Thank you. God bless you all. I am here to kickstart the main program with a very heartfelt introduction of our today's event, that is Pyar Ki Chingari, a spark of love. Do you know how important the love is for all of us? And where do we learn the real meaning of love, care, and warmth? Anyone? Yes, it is our grandparents. They are the one who loves us unconditionally without anything accepting back from us. They love with a pure intention. The spark of love is the most powerful spark that can light up even the darkness of the room. So here we are to show you something and tell that love is something that we all are needed. The stories of our grandparents are the stories that have kept the flame of love, care, and affection alive in our families for generations. They taught us that love is not just a feeling, it's an action, a habit, a way of living. It's not just a feeling, but a look. And you know, a look over a person whom we love brings joy and satisfaction in us. So with this, we now welcome our little toes of our school to begin this spectacle performance describing us about the grandparents' love. Give them a big round of applause. आज के समय में समाज तेजी से बदल रहा है। जहां कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक हैं, वहीं कुछ बदलाव मानवीय संवेदनाओं को कमजोर कर रहे हैं। इन्हीं समाप्त होती भावनाओं को फिर से जागृत करने और बुजुर्गों के प्रति करुणा, सहयोग तथा मानवीय मूल्यों का संदेश देने के लिए कार्मेल कॉन्वेंट के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत है यह भावनात्मक प्रस्तुति प्यार की चिंगारी। दानिश, दानिश, जल्दी करो। कर रहा हूँ मम्मी, लेकिन मेरी साइंस की कॉपी नहीं मिल रही है। मैंने कॉपी बैग में रख दी है, जल्दी आओ। पापा, मम्मी, आज आप दोनों बाजार जाएंगे? क्यों, क्या कुछ लाना है बाजार से? याद नहीं, क्रिसमस आने वाला है। हाँ, हम भी तो वही तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नई डेकोरेशन लाइट्स, ज़ारा के कपड़े, नाइकी के जूते और एक बहुत बड़ा केक चाहिए। लाइट तो हम
पिछले ही साल लाए थे और तुम्हें पिछले ही महीने तुम्हारे बर्थडे पर जूते भी दिलाए थे। वो सब तो पुराना हो गया है, मुझे नया चाहिए। वो सब मेरे दोस्तों ने देख लिया है और क्रिसमस की शाम वे सब यहाँ आएंगे। पता नहीं क्यों हमारा बच्चा दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा है। अकेलापन भी तो एक वजह हो सकता है। तुम कहो तो उसके दादा दादी को बुला लेते हैं। अरे रहने दो, ऑफिस और घर दोनों संभालना पहले ही मुश्किल है, उनके आने से काम और बढ़ जाएगा। दानिश का स्कूल पास में ही था, इसलिए वह पैदल ही स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक टूटी फूटी झोपड़ी पड़ती थी, जहां एक छोटी बालिका अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। दानिश उन्हें रोज देखा करता था, लेकिन आज उसे वहां से कुछ आवाजें सुनाई दी और वह उनकी बातें सुनने के लिए रुक गया। भैया, इस साल हम भी क्रिसमस पर लाइट लगाएंगे ना? नहीं छोटी, हमारे पास पैसे नहीं है। सामने वाले घर में लाइट लगेगी तो उसकी रोशनी हमारे घर तक भी आएगी। ठीक है भैया। और तुमने फिर वही नई फ्रॉक पहन ली, बदल दो इसे। भैया, यह नई नहीं है, पिछले साल क्रिसमस पर किसी ने दी थी। हाँ, लेकिन यह मेरे दूसरे कपड़ों की तरह फटी नहीं है। तभी तो इसे बदल दो, मैं धो दूंगा, फिर क्रिसमस पर पहन लेना। भैया, हम गरीब क्यों हैं? क्या हम त्योहार पर एक नया कपड़ा भी नहीं खरीद सकते? क्या भगवान भी हमसे दूसरों की तरह घृणा करते हैं? नहीं नहीं छोटी, भगवान हमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने महलों में नहीं, एक झोपड़ी में जन्म लिया था। यह सुनकर दानिश को गहरा धक्का लगता है और फिर दानिश उसी बात के बारे में सोचता हुआ स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में भी उसका मन उदास रहता है। उसे बार बार उस छोटी बच्ची की बातें याद आती रहती हैं। दोस्तों के पूछने पर वह बात टाल देता है और छुट्टी के बाद चुपचाप घर लौट आता है। अरे दानिश, तुम आ गए। चलो हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स बनाए हैं। पापा भी आते होंगे। दानिश, देखो मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस की लाइट्स और नए कपड़े ले आया हूँ। केक उसी दिन सुबह आ जाएगा। मम्मी, मेरी पुरानी लाइट्स कहाँ रखी है? अब तुम्हें पुरानी लाइट्स की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ, आप रहने दीजिए। पता नहीं इस बच्चे के दिमाग में क्या चलता रहता है। अरे मैंने कहा था ना, अकेला रहता है। तुम कहो तो इसकी दादी को ले आऊं? चुप रहो, नहीं लाना। आज क्रिसमस की शाम है, समय लगभग 4 बजे का है। दानिश अपने पापा के साथ मिलकर घर को पुरानी लाइट्स से सजा चुका है। तभी उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों को देखकर दानिश बहुत खुश हो जाता है। मम्मी, पापा, आप जो क्रिसमस का सामान लाए थे ना, वह कहाँ है? और केक आ गया क्या? मम्मी, पापा और तुम सब मेरे साथ चलो, सब लोग अपना अपना सामान भी ले लो। दानिश, हम क्रिसमस मनाने कहाँ जा रहे हैं? अंकल, आंटी, क्या आपको पता है? मुझे तो नहीं पता। यह लड़का जाने और इसकी सरप्राइज पार्टी। छोटी बाहर आओ। भैया, भैया बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे यह सब क्या है दानिश? हम आपके साथ क्रिसमस मनाने आए हैं भैया, चलो सब मिलकर लाइट्स लगाते हैं। दानिश, उसके मित्र और मम्मी पापा सब मिलकर छोटी का घर सजाते हैं, साथ में क्रिसमस गीत गाते हैं और नाचते हैं।
हीरा प्यारी आज का दिन कितना अच्छा है ना? हाँ।
आज बिल्कुल पहले की तरह क्रिसमस मनाया। तुम क्या सोच रही हो? मैं अपनी गलतियों के बारे में सोच रही हूँ, कैसे सबसे माफी मांगी जाए। हाँ हाँ, मुझे भी तो बहुत अफसोस हो रहा है। दूसरे दिन दानिश अपने विद्यालय की प्रार्थना सभा में खड़ा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सिस्टर। मुझे आशा है कि आप सभी ने क्रिसमस का त्योहार बहुत आनंद और उल्लास के साथ मनाया होगा। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे विद्यालय की कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने, विशेष रूप से दानिश ने, छोटी और उसके भाई के जीवन में खुशियों की रोशनी भर दी और उनके साथ मिलकर क्रिसमस मनाया। हम उनके इस नेक कार्य के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं और यह आशा करते हैं कि आप सभी उनसे प्रेरणा लेकर दूसरों के जीवन में भी ऐसी ही खुशियों की रोशनी फैलाएंगे। अरे, दानिश ने गरीबों की मदद की है। हाँ, पर वह तो बड़ा अकड़ू है। क्या हुआ? प्रिंसिपल ने तो उसकी तारीफ की ना। हम सबको भी कुछ न कुछ ऐसे नेक काम करने चाहिए। तो फिर दीपावली पर सबकी मदद करें क्या? हाँ, दीपावली में भी करेंगे। और भी बहुत सी जगह है जहाँ हम कभी भी जाकर मदद कर सकते हैं। हाँ, मेरे पापा कह रहे थे हमारी कॉलोनी की आखिरी गली में एक ओल्ड एज होम खुला है। तो हाँ, वहाँ तो बहुत सारे दादा दादी रहते होंगे। पता है, ये वही लोग होते हैं जिन्हें उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं। तो ठीक है, कल शाम को जब हम खेलने आएंगे तब हम वहाँ चलेंगे। Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you all get up, oh, and if you all get up, hey, Samina, mina, sangarewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, hey, waka, waka, hey, Samina, mina,
शाम का समय है। चारों बच्चे वृद्धाश्रम पहुंचते हैं। वहां एक दादा और एक दादी उदास मन से कुर्सी पर बैठे हैं। तभी वे बच्चों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। देखो, सामने से बच्चे आ रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ, याद तो आ रहा है, पर अब उन यादों का क्या करें? अब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। दादा दादी जी, आप दोनों यहाँ कैसे आए? क्या आपका यहाँ कोई नहीं है? बताइए ना दादी जी, हम आपको सुनने आए हैं। रुको रुको बच्चों, मैं सब कुछ बताती हूँ। मुझे आज भी याद है वो मनहूस दिन जब हमारे बेटे और बहू हमें यहाँ छोड़कर चले गए थे। क्या वे बहुत गरीब थे दादी, जो आपको अपने पास नहीं रख सकते थे? नहीं नहीं, वे गरीब नहीं थे। उनके पास बड़ा सा मकान था जिसे हमने अपनी मेहनत से बनवाया था। मकान में तो हमारे लिए जगह थी, पर उनके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। वह दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ बच्चों। सुनो उस दिन। माँ जी, ये कैसा पोछा लगाया है? आप घर का सिर्फ झाड़ू पोछा करती हैं, उसमें भी सफाई नहीं। बहू, मेरी कमर दुख रही है और मैं पोछा नहीं लगा पा रही हूँ। थोड़ी देर से लगा दूंगी खाना खाकर। खाना? खाना तो आपको शाम को मिलेगा। काम पूरा नहीं तो खाना नहीं। ये हाथ में क्या छुपा रहे हैं आप? अरे बेटे, सब्जी लेने गया था तो मेडिकल से तेरी माँ के लिए आयोडेक्स ले आया हूँ। उनकी कमर में दर्द है ना। मैंने पैसे तो सब्जी के लिए दिए थे, फिर आयोडेक्स कहाँ से आया? अगर कुछ जरूरत है तो मुझे कहो। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं आप लोगों का ध्यान नहीं रखता? मैंने सब्जी कम खरीदी थी तो पैसे बच गए और उन्हीं से आयोडेक्स ले आया। झूठ मत बोलिए पापा जी। हाँ, और ये बुढ़िया काम चोरी करती है। हमारे बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलो, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। ठीक कहा, अब और कोई रास्ता नहीं है। चलिए पापा मम्मी, आप लोग जल्दी अपने जरूरी कपड़े ले लीजिए। मैं घर के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या यह वृद्ध आश्रम है? हाँ बोलिए, आपको क्या काम है? ये लोग मुझे रास्ते में मिले, इन्हें यहाँ रखना है। क्या रिश्ता है आपका इन दोनों से? हमारा तो कोई रिश्ता नहीं। रास्ते में पड़े मिले थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे। हमने तो 2 दिन खाना भी खिलाया, पर हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा, झूठ मत बोलो, तुम ही मेरे बेटे बहू हो। नहीं नहीं सिस्टर, हमारा कोई रिश्ता नहीं। आप इन्हें रखे तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़कर जा रहे हैं। मैं सब समझ गई, रहने दो। इस तरह से वे दोनों हमें वृद्ध आश्रम छोड़कर चले गए। सिस्टर ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। दादा दादी को उदास देखकर बच्चों ने अपने मित्रों को बुलाया और उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ खेलने और नाचने लगे। हमारी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। बहुत गुस्से में होके भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसे करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून।
समान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? दादा और दादी वो नहीं जिनसे हम रोज बात करें। दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर हो पर हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानी सुन के सपनों में खोना है, उन्हें हम प्यार से दादा दादी और नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बलाएं मांगू रे। दूसरे दिन प्रार्थना सभा में उन्होंने यह बात प्रिंसिपल को बताई। प्रिंसिपल ने उनकी तारीफ की और उनके लिए तालियां बजवाई। हमने भी तो कुछ करने का सोचा है ना फ्रेंड्स? मेरे पास तो एक आइडिया भी है। बताओ बताओ, क्या है वो आइडिया? क्यों ना हम सब मिलकर अपनी कॉलोनी, स्कूल और रास्ते में पौधे लगाएं? उनकी देखभाल कौन करेगा? अपन छोटे हैं तो मम्मी पापा बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए आसपास ही पौधे लगाएंगे और पानी देंगे। हाँ, हमारे बढ़ते हुए पौधों को देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। हाँ, हम बड़ों को भी कहेंगे कि वह जहाँ देखभाल कर सकते हैं वहाँ पौधे जरूर लगाएं। हाँ, आज शाम को हम पौधारोपण करेंगे। झूमेगी धरती झूमेगा ये गगन, फूलों और कलियों से महकेगा हर चमन। निर्जल के पेड़ों को आओ लगाए हम, धरती को मिलके सजाए। आओ पेड़ लगाने, पर्यावरण को सजाए। आओ पेड़ लगाने, पर्यावरण को सजाए। हमको है जगना और है समझना, अपनी आंखें खोले और कुछ करे अभी अभी अभी। आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। हमारे ग्रह पर आई समस्या, आओ सुलझाए इससे मिलकर हम अभी अभी अभी। आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। आओ पेड़ उगाए
संवारे और बचाए हम अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल आओ शुरू करें अभी We need to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We gotta solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. And we need to start right now. And we need to start right मुझे बहुत ही खुशी होती है जब पता चलता है कि हमारे विद्यालय के बच्चे रोज कुछ ना कुछ अच्छा और मोरल वैल्यूज से भरा हुआ काम कर रहे हैं। कल हमारे विद्यार्थियों ने 200 पौधे लगाए और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। हम सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे हमारी भी तारीफ हो और तालियां बजे। तालियां बजाने के लिए नहीं बल्कि नेकी और अच्छा काम करना हमारा फर्ज है। देखो, यह ट्रैफिक अंकल और आंटी रोज धूप में खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और रोज हमें रोड क्रॉस करा देते हैं। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो उनके लिए ठंडा पानी देते हैं। मैं वह आंटी के लिए अपनी टोपी देती हूँ। बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। बाबू समझो इशारे और पुकारे पम पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। आई री बाबा री बाबा बाबा री बाबा री बाबा बाबा री बाबा री बाबा बाबा री बाबा री बाबा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना खाना पीना गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। गाना बजाना खाना पीना गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, 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 दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा चंप गैया बात हमारी सुन लो भैया। जीवन अपना तुमको बचाना, सीख समझ कर गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल जरूर अपनाना, इसको कभी तुम भूल न जाना। ट्रैफिक का ये पहला रूल, इसको बना लो अपना उसूल। रेड रुको, येलो देखो, ग्रीन चलो, अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। अपनाओ ट्रैफिक रूल, जीवन का मंत्र ये मूल। जब वे तीनों बच्चे पानी की बोतल और टोपी दे रहे थे, तभी अचानक
एक तेज रफ्तार गाड़ी ने राह पार करते व्यक्ति को टक्कर मार दी। गाड़ी वाला तो भाग गया, परंतु वह व्यक्ति नीचे गिर गया। वह दर्द से तड़प रहा था। ज्यादातर लोग उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे। तभी तीनों विद्यार्थी उसके पास मदद करने के लिए पहुंचे। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आप लोगों की तारीफ एनुअल फंक्शन में करूंगी। एनुअल फंक्शन भी आने वाला है। सिस्टर, क्या हम वृद्धाश्रम वाले दादा दादी को चीफ गेस्ट बनाएं? यह तो बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे। आज स्कूल का एनुअल फंक्शन है। सभी मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल सिस्टर के साथ दादा दादी स्टेज पर आए। सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उन्हें देखकर दानिश के मम्मी पापा के चेहरे पर उदासी छा गई, जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो। आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। मिस्टर शर्मा रिटायर्ड टीचर है और अभी यह दोनों ओल्ड एज होम में रहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय प्रिंसिपल सिस्टर को, जो श्रीफल और शॉल के साथ मेहमानों का स्वागत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी आपको। और अब हमारे विद्यालय का रंगारंग कार्यक्रम शुरू होता है, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने सुंदर सुंदर बच्चे। जी हाँ, यह आपका बचपन है जो स्टेज पर नाच गाकर आपको याद दिला रहा है कि बचपन कितना सुंदर होता है। To stay. Give me a song to sing.
लाजवाब प्रस्तुति। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हमारी अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं काबल के सुंदर सुंदर सुपरस्टार। यह नाचते गाते हुए बता रहे हैं कि जीवन कितना आनंदमय है, कितना खूबसूरत है। यह मासूम और भोला बचपन, इसी को अपने हृदय में बसाकर रखना है। दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। इस रंगारंग प्रस्तुति को तालियां बजाकर प्रोत्साहित कीजिए और एक और प्रस्तुति के लिए तैयार रहिए। आप सभी मानते ही हैं कि यह तंत्र मंत्र का युग नहीं है, यह तो यंत्र का अर्थात टेक्नोलॉजी का युग है। जी हाँ, इस युग में भी एक भूत है जो तंत्र से जाएगा न मंत्र से, न बाबा से जाएगा न ओझा से जाएगा। यह यंत्र का भूत है जिसे माता पिता ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वही इसे में रिचार्ज डलाते हैं, इसे खरीद कर घर में लाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोबाइल के भूत की। वेलकम टू द बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने।
गया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छोड़ने। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? जैसा कि आपने देखा, इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने प्रयास किया है समझाने का कि यह तकनीकी का युग हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है। इसे हृदय में या दिमाग में प्रवेश करने से रोकिए। विज्ञान नौकर हो सकता है, मालिक बनाने की कोशिश ना कीजिए। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय श्री शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीष और ओजस्वी वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रिंसिपल, शिक्षकगण और प्रिय बच्चों, यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना सम्मान दिया। हम दोनों जब एक दिन उदास और निराश बैठे थे और अपने पोते को याद कर रहे थे, तभी इस विद्यालय के कुछ बच्चे हमारे पास आए और बात करने लगे। अब ये रोज का सिलसिला हो गया है। हमें आज तो बहुत सारे पोता पोती मिल गए हैं। हम बहुत खुश हैं। हमने अपने बहू बेटों को भी क्षमा कर दिया है, पर इतना कहेंगे, माँ बाप तुम्हें असहाय अवस्था में पालते हैं, गले लगाते हैं और तुम उन्हें उनकी असहाय उम्र में छोड़ देते हो। बच्चों, हमें पैसा नहीं चाहिए, एक समय का भोजन दोगे तो भी हम जी लेंगे। बस हमारे हिस्से का प्यार और सम्मान हमें दे दो। बस हमारे हिस्से का प्यार और सम्मान हमें दे दो। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मम्मी पापा को कभी वृद्धाश्रम नहीं जाने दूंगा। आई प्रॉमिस। यह सुनकर दानिश के मम्मी पापा दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और अपने माता पिता के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। उनके इस हृदय परिवर्तन ने सभी के दिलों को प्रेम से भर दिया। क्रिसमस प्रेम का पर्व है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति होती है। आज जब दुनिया युद्ध की भयावह, रक्तपात, नफरत और हिंसा में डूबी हुई है, तब प्रभु यीशु का जन्म और जीवन हमें प्रेम का यह संदेश देता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और वे मानवता के सच्चे संदेशवाहक हैं। अंत में आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। Give a big round of applause for this spectacular performance. It serves as a lesson and inspiration for us that we should never respect our grandparents and value them and respect them. विद्या के इस मंदिर में कार्मेल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के इस वार्षिकोत्सव में
जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ मैंने देखी, मैं रोमांचित हो गया हूँ। आपने भी ये महसूस किया होगा। दरअसल आज हमारे प्यारे बच्चों का उत्साह, उनकी ऊर्जा, उनकी गतिविधियों का जश्न मनाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इसे स्कूल प्रबंधन, सिस्टर प्रिंसिपल, सहायक प्रिंसिपल और इस पूरी संस्था के पदाधिकारी सिस्टर, यहाँ के शिक्षक, पालकगण और प्यारे बच्चों, आज कार्मेल का वार्षिक उत्सव है और मुझे बुलाया गया है। और मैडम का आग्रह था कि मैं कुछ देर ठहरूं, मुझे जाना था एक मीटिंग में। उन्होंने कहा सर ठहरिए, ये पूरा प्रोग्राम देख करके आप जाइए, फिर आप बोलिएगा। और वाकई सिस्टर ने ये बहुत अच्छा किया और मुझे ये दिखाया। दरअसल हम सब तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी पालकों से मैं बोल रहा हूँ, हम सब तरफ ग्रो कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। लेकिन जो मूल है हमारा प्रेम, जो कार्मेल का आज का स्लोगन है, आज का थीम है, प्यार की चिंगारी, वो कहीं मध्यम हो रही है। और अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में इसी पर चर्चा हो रही थी कि हमारी जो महत्वपूर्ण संस्था है विवाह, दूसरी संस्था है परिवार। उन संस्थाओं में हमारा ध्यान कम होता जा रहा, वो दरक रही है। हमारा मूल ध्यान हमारी इन संस्थाओं को पोषित करने में होना चाहिए। आप देखते थे 20 साल पहले हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था, किंतु अब न्यूक्लियर एक एकल परिवार पर हम आ गए हैं। अच्छी संस्थाएं, कार्मेल जैसी संस्थाएं जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, चहुमुखी विकास करने के लिए प्रयासरत है। और आपने देखा कि आज एक पूरी थीम में आपको हर संदेश के साथ एक गीत था और बहुत ही मनोरंजक तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से आप तक पहुंचाया गया और आपके ही बच्चों ने उनको पहुंचाया। मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूं, जो आपकी यूनिट है जिसने इसको तैयार किया, साथ ही जो मेरे पालक सामने बैठे हुए हैं। हम सब की जिम्मेदारी अब ये हो जाती है कि हम बच्चों को प्रेम दें, रिश्तों की परिभाषाएं सिखाएं। पढ़ाई तो हमारा कार्मेल करवा ही रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें अपने घर के छोटे छोटे काम, हमारे परिवार की मर्यादाएं, उनकी नैतिकता और रिश्तों की आपसी समझ से उनको अवगत कराएं। साथियों, आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। अभी मैं अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ मेहमान हुआ, तो जैसे ही हम गए, पूरा परिवार बैठा हुआ था, हम भी पहुँचे, चाय पानी हो रहा था। तभी परिवार के सदस्य ने बोला, बच्चों आप अंदर चले जाओ, आप अपनी पढ़ाई करो। बच्चे उठे और अंदर चले गए। अब आप सोचिए, हम उस परिवार के क्या हैं, क्या लगते हैं, हमारा आपसी क्या रिश्ता है, हमारी क्या बातें हो रही है, इससे बच्चा दूर हो गया। ये अब हम उसे कब सिखाएंगे? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर के छोटे छोटे काम, मम्मी कहती है बेटा तू रुक जा, तू मत कर, तू पढ़ाई कर। फिर जब आपकी अवस्था बड़ी होगी तो बच्चे ने सीख लिया है मुझे घर का काम नहीं करना है, तो ये हमें ध्यान देना है। और इन बच्चों का जो उत्साह, उमंग, इनके सपने देखकर ऐसा लगता है, गर्व होता है। हम सबको गर्व होता है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये हमारा आने वाला भारत है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, रोमांचित हूँ। पूरी कार्मेल टीम को मेरी ओर से बधाई, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I request respected chief guest to please be on the stage.
Thank you, sir, for gracing our event with your inspiring words. Our respected chief guest with a token of love. Please give a big round of applause. Thank you, sister. Forward to deliver the vote of thanks for expressing gratitude to everyone who made this celebration memorable. A very warm and cheerful morning to respected chief guests, our president, respected Sister Sajiva, beloved principal sister, parents, sisters, teachers, and my dear friends. As we come to the end of this luminous morning, my heart is full. Our theme was the spark of love, and looking at the performances and the glowing faces in this audience, it is clear that this flame of love is burning brighter than ever in our school community. First and foremost, we bow our heads to gratitude to God Almighty. It is His grace that guided us through the weeks of practices and His love that has shown through every act on this stage today. A sincere thank you to the chief guest, respected Hariom Vaishnav BRC of Indore Rural, for gracing us with your presence. Your words have inspired us to carry the spark of excellence wherever we go. I also express my gratitude to our President, Mother Provincial, respected Sister Sajiva. Our work is accomplished under your guidance. Your each steps and works are truly inspirational for us. A heartfelt thank you to our hard-working, beloved Principal Sister, Sister Mary. Your unwavering contribution has truly shaped today's program. Thank you for being the steady hands that guides our ship and for providing us with the platform to showcase our talents. Respected Sister Jyotish, whose motherly care and meticulous planning made this event possible. We extend a heartfelt thank you to Sister Jyotish and every single teacher of the primary and pre-primary sections. You are the one who planted the seeds of love in these young hearts and nurtured them into the beautiful performances we saw. Some flames burn brightest behind the scenes. A massive thank you to the creative pillars of this show. Respected Sandhya Tripathi ma'am, Mukul sir, Anlek sir and Piyush sir. Your constant efforts, patience and visions are what truly brightened every performances on this stage. To everyone else who worked tirelessly behind the curtains, your hard work did not go unnoticed. To our parents, thank you for your unwavering trust and for being the wind beneath our wings. And to my fellow students, you were the stars of this show. You carried the flame of love with grace and energy. An event of this scale is impossible without technical brilliance. We thank you, Mr. Rajesh and team for Mayur Tent for this beautiful setup. We also extend our thanks to Mr. Munna Bhai for lighting beautiful setup and for the sound system that brought our theme to life. Our teaching and non-teaching staff who worked like a well-oiled machine to ensure everything ran smoothly. As we ending this event, let us not just extinguish the lights, but carry the spark of love in our hearts. Thank you all for making this annual function a night to remember. Have a safe journey home. Thank you. Have a nice day.